Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students, viewers and spectators. Welcome to Professor Ghulam Hussain Bhatti Chemistry channel. My dear students, viewers and spectators, please subscribe my channel so that you can get my latest video as soon as possible. Now, the topic today I am going to deliver the last topic of alkyl halide, that is chemical reactions of Grignard reagent. Number one reaction is reaction with water. My dear students, this is ethyl magnesium bromide. Ethyl magnesium bromide, when it is reacted with water in the presence of ether as a solvent, and you know that ये जो ethyl है, this carbon which is attached with magnesium has electronegative charge, while magnesium contain electropositive charge. This nucleophile, that is this ethyl group, will attack on this water, और ये हाइड्रोजन को अपने साथ जो है अटैक करेगा किसके ऊपर? इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, इसके ऊपर अटैक करेगा और इसको अपने साथ जो है वो मिला लेगा, एंड इन दिस वे इथेन इज प्रोड्यूस्ड. दिस इज कॉल्ड इथेन. एंड ये जो मैग्नीशियम है इसके साथ एक ब्रोमीन पहले लगा हुआ है और ये OH जो है मैग्नीशियम के साथ अटैच हो जाएगा, एंड दिस इज इन दिस वे इथेन इज प्रोड्यूस्ड. नाउ द सेकंड रिएक्शन of Grignard reagent with ammonia. My dear students, when Grignard reagent is reacted with ammonia, अमोनिया को हम इस तरह भी लिख सकते हैं NH2NI2H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसी का अटैक करवाएंगे हम, इसी के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे न्यूक्लियोफाइल के साथ. When this nucleophile which contain negative charge is will attack on this ammonia, then this proton, that is electrophile जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा, and in this way ethane is produced. And as in the case of water, मैग्नीशियम के साथ एक ब्रोमीन अटैच हुआ और ये Ni2 ग्रुप जो है, दूसरा जो है NH2 जो है ग्रुप जो है मैग्नीशियम के साथ साथ अटैच हो जाएगा. दिस इज द सेकंड रिएक्शन ऑफ Grignard reagent with ammonia. Now, the third reaction with ethanol or alcohol. My dear students, the same is case here. This is alkyl magnesium halide. This ethyl is nucleophile. It will attack on this. This is ethyl alcohol. This is ethyl magnesium bromide. अब इसका जो इलेक्ट्रोफाइल है H पॉजिटिव, इसके साथ ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एंड इन दिस वे इथेन इज प्रोड्यूस्ड. एंड ये जो मैग्नीशियम है इसके साथ एक ब्रोमीन लगा हुआ है और दूसरा ये जो OCH2CH3 इथॉक्सी ग्रुप जो है इसके साथ जो है अटैच हो जाएगा मैग्नीशियम के साथ. दिस इज द रिएक्शन विद अल्कोहल. My dear students, now the reaction number 4 is reaction with cyanogen chloride. When this ethyl magnesium bromide is reacted with cyanogen chloride in the presence of ether as a solvent, then what will happen? This nucleophile will attack on this cyanide CN, and in this way it will capture CN electrophile, and it will be converted into ethane nitrile, and ये जो मैग्नीशियम के साथ Br और Cl दोनों अटैच हो जाएंगे. दिस इज द रिएक्शन विद cyanogen chloride. किसका रिएक्शन? Grignard reagent का. My dear students, now reaction number 5, reaction with carbon dioxide. This is the structure of carbon dioxide, C double bond O, C double bond O. This is ethyl magnesium bromide. My dear students, remember one very important concept over here, that हमेशा nucleophile will attack on electrophile. ये बात याद रखें. न्यूक्लियोफाइल जो है इसमें देखें CH3CH2 ये एक न्यूक्लियोफाइल है. ये जो न्यूक्लियोफाइल है इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन. जब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा तो क्या होगा? ये जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. डबल बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से
ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये जो ऑक्सीजन है ये भी क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल इन रिटर्न। ये जो न्यूक्लियोफाइल है वापस किस पर अटैक करेगा, ये जो मैग्नीशियम पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज है। अब मैग्नीशियम क्या है, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल है और ऑक्सीजन क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइलिक ऑक्सीजन विल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक मैग्नीशियम और ये इस तरह हो जाएगा। यहां देखें इस कार्बन के ऊपर इस किसने अटैक किया था, न्यूक्लियोफाइल ने। ये न्यूक्लियोफाइल इसी तरह O C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड C, इसके साथ ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया CH2 CH3। अब ये जो इसके साथ क्या है O, इस ऑक्सीजन के साथ आगे ये जो MgBr अटैच हो जाएगा। और ये बात याद रखें, हमेशा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, कभी भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पर अटैक नहीं करेगा। ये तमाम ये जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे तमाम के अंदर यही कंसेप्ट चलेगा। अगर आपको इस चीज़ की समझ आ गई तो आप कभी भी प्रोडक्ट गलत नहीं बनाएंगे, आपका रिएक्शन गलत नहीं होगा। नाउ ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना, अब क्या होगा, इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। एसिड हाइड्रोलिसिस क्या होता है, रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्टेंट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड। H पॉजिटिव लिखा कि वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, तो इसको क्या कहते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस। अगले सारे रिएक्शंस में हम एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है इट कंटेन पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्या करेगा, ये जो हमारे पास ये जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, ये देखें ये वाला O नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और ये जो ऑक्सीजन है न्यूक्लियोफाइल है ये इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन को अपने साथ कैप्चर कर लेगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और इस प्रोडक्ट को अगर मैं सीधा करके लिखूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपानोइक एसिड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब ग्रिग्नार्ड रीजेंट का हम रिएक्शन करवाएंगे, व्हेन ग्रिग्नार्ड रीजेंट इज रिएक्टेड विद कार्बन डाइऑक्साइड देन फाइनल प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्रोपानोइक एसिड। और इसके बाद ये देखें ये जो OH नेगेटिव है, HOH मीन OH नेगेटिव, OH नेगेटिव का जो है वो मैग्नीशियम के साथ जो है अटैच हो जाएगा MgBr एंड OH नेगेटिव, एक साइड बाई प्रोडक्ट जो है ये बन जाएगा एंड वी गेट द मेन प्रोडक्ट हेयर दैट इज प्रोपानोइक एसिड। अगर अभी ये हम बार बार इन्हीं चीज़ों को जो है पढ़ेंगे और आपका जो है मजीद फर्दर कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। एंड नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, कन्वर्ट मीथेन इनटू प्रोपानोइक एसिड, दिस इज द कन्वर्जन। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कन्वर्ट मीथेन इनटू प्रोपानोइक एसिड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मीथेन की क्लोरीनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मिथाइल क्लोराइड, देन HCl विल बी फॉर्म्ड। ये मिथाइल क्लोराइड की, ये जो मिथाइल क्लोराइड है इसकी हम क्या करेंगे, वुड सिंथेसिस करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में तो सुने वुड सिंथेसिस का, इसमें क्या है, 2 मिथाइल क्लोराइड व्हेन रिएक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, then what will happen, my dear students, when they will react with each other, then it will be converted into, in the presence of ether as a solvent, it will be converted into ethane and sodium chloride is produced. Now ये जो ईथेन बना, इस ईथेन की हम आगे फर्दर क्लोरीनेशन करेंगे, इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये क्या बन जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड का, नाउ इथाइल ब्रोमाइड का हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ,
मैग्नीशियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर एज अ सॉल्वेंट। एक बात याद रखें, ये जो जितने भी रिएक्शन हुए हैं तमाम के अंदर जो है ईथर जो है वो यूज करेंगे एज सॉल्वेंट, ये याद रखें। और ये व्हाट विल हैपन, तो ये क्या बन जाएगा, व्हेन इथाइल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर देन ग्रिग्नार्ड रीजेंट इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज प्रोड्यूस्ड। तो हमने मीथेन से इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्रोड्यूस कर लिया, ग्रिग्नार्ड रीजेंट प्रिपेयर कर लिया। अब हम इसका ये रिएक्शन करवा देंगे विद कार्बन डाइऑक्साइड और आखिर में क्या बनेगा, प्रोपानोइक एसिड। कितने स्टेप का रिएक्शन है, स्टेप गिने 1 2 3 4, ये 4 स्टेप हैं। किसके 4 इक्वेशन लिखेंगे, किसकी, ग्रिग्नार्ड रीजेंट प्रिपेयर करने की। फिर आप 2 इक्वेशंस ये लिखेंगे, ये इक्वेशन नंबर 5 और ये इक्वेशन नंबर 6। दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 6 केमिकल रिएक्शंस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज नोट। और इसके बाद एक और आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन, कन्वर्ट इथेन इनटू प्रोपानोइक एसिड। पहले क्या था, मीथेन को कन्वर्ट करें, इथेन आ गया, 2 इक्वेशंस कम हो गई माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे, देखें हमने मीथेन से इथेन बनाया था, तो अब यही इथेन से शुरू कर देंगे, ये इथेन से शुरू कर देंगे, इथेन की ब्रोमिनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या होगा, इथाइल ब्रोमाइड बनेगा, साथ HBr बाई प्रोडक्ट। इथाइल ब्रोमाइड is reacted with magnesium as a magnesium metal in the presence of ether as a solvent, then ethyl magnesium bromide is produced. This is called Grignard reagent. अब Grignard reagent का हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और फिर ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसकी फर्दर एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो क्या बन जाएगा, प्रोपानोइक एसिड। ये क्या है, इसका नाम है प्रोपानोइक एसिड। तो दिस इज ऑल अबाउट रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर हमने रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 2 लॉन्ग क्वेश्चन, 2 इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स को भी मैं पढ़ा जी। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद कार्बोनाइल कंपाउंड। किसके रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रीजेंट के। नंबर 1, इसमें हम 3 तरह के रिएक्शन पढ़ेंगे। इसमें हम ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल प्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। क्वेश्चन आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, हाउ यू विल प्रोड्यूस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। सो दिस इज कॉल्ड रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। नाउ द फर्स्ट रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड HCHO. My dear students, this is alkyl magnesium halide that is Grignard reagent. अब देखें ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है CH3CH2 नेगेटिव। दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस कार्बन। ये जो कार्बन है इसके ऊपर अटैक करेगा। कार्बन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल है, इसके ऊपर अटैक करेगा। तो ये जो कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड है, जैसे मैंने आपको यहां बताया, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एंड इन दिस वे ये जो हमारे पास जो रिएक्शन होगा, ये देखें ये कार्बन है, ये कार्बन ले लें, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन लगा दें। तीसरा, अब ये जो इथाइल न्यूक्लियोफाइल है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। किस तरह, सिमिलरली एज हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ किया। अब इसके साथ O लगा हुआ है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, सिंगल बॉन्ड O पर नेगेटिव चार्ज है। अब O क्या बन जाएगा, O भी ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक मैग्नीशियम एटम। तो जब ये इसके साथ अटैक करेगा तो MgBr इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये हमारे पास एक प्रोडक्ट बन गया। अब इसको हम इसकी क्या करेंगे, जिस तरह हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये प्रोडक्ट बनाया तो इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे। क्या करेंगे, सिमिलरली इसमें वाटर ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, H पॉजिटिव लिखा हुआ, एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो व्हाट विल हैपन, ये जो Mg, ये जो
H पॉजिटिव है, एसिड का जो H पॉजिटिव है प्रोटॉन है, ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और OH इसके साथ अटैच हो जाएगा। एंड इन दिस वे ये देखें, ये कार्बन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, दूसरी हाइड्रोजन, तीसरा इथाइल ग्रुप और ये ऑक्सीजन, इसके साथ ये जो वाटर का H पॉजिटिव अटैच हो गया और ये क्या बन गया, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अल्कोहल, या इसका हम IUPAC नेम दें तो इसका नाम है। इन दिस वे 1 प्रोपानोल इज प्रोड्यूस्ड और ये मैग्नीशियम के साथ Br और OH जो है ये वाला OH इसके साथ अटैच हो जाएगा। एंड दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस हुआ, प्राइमरी अल्कोहल। नाउ वी विल कन्वर्ट Grignard reagent into secondary alcohol and tertiary alcohol by reaction with carbonyl compounds. Reaction of carbonyl compound is reaction with acetaldehyde CH3 C double bond OH. When Grignard reagent is reacted with acetaldehyde, same is the case here, उसी तरह ये reaction होगा। ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, this nucleophile will attack on this carbon atom and ये इस कार्बन पर क्यों अटैक करेगा, मैंने आपको बताया है that nucleophile will always attack on electrophile। ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ने इस पर अटैक किया तो जिसकी वजह से जो है ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये वो CH3 यहाँ अटैच हो गया। ये देखें, इसके साथ एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप है, दोनों अटैच करें, साथ इसके साथ ये इथाइल ग्रुप अटैच कर दें और आगे ऑक्सीजन के साथ ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल बन गया। दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन मैग्नीशियम एटम, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये साथ OMgBr आ गया। अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना, we will do its acid hydrolysis in the presence of water and in the presence of small amount of acid। तो what will happen my dear students, ये जो हमारे पास ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और इस पर जो है ये देखें नेगेटिव चार्ज है और ये प्रोटॉन इसके साथ अटैच हो गया और ये प्रोडक्ट हमारे पास जो है ये बन गई। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो हम क्या बना रहे थे, वी आर कन्वर्टिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इनटू सेकेंडरी अल्कोहल और सेकेंडरी इसका IUPAC नेम क्या है, 2 ब्यूटानोल और साथ Mg, इसके साथ जो है Mg और Br जो है और OH जो है वो अटैच हो जाएगा। एंड इन दिस वे दिस बाई प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड and what we have produced here, we have converted Grignard reagent into secondary alcohol by the reaction with formacetaldehyde. This is the second conversion. Now the third is the reaction of Grignard reagent with acetone। एसीटोन के साथ जब ये रिएक्शन करेंगे तो टर्शरी अल्कोहल जो है वो प्रोड्यूस होगा। सिमिलर केस हियर माय डियर स्टूडेंट्स, हियर इज दैट, ये देखें, दिस इज इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड व्हेन इट इज रिएक्टेड विद एसीटोन, दैट इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। तो व्हाट विल हैपन, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है CH3 CH2, ये अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर और ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन का ये ब्रेक हो जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए, ये इथाइल ग्रुप, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैच हो गया, इसके साथ CH3 लगा रहेगा और इसके साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड और ये जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया, दिस न्यूक्लियोफाइल लिंक ऑक्सीजन विल अटैक ऑन मैग्नीशियम दैट इज इलेक्ट्रोफाइल और OMgBr यहाँ अटैच हो जाएगा। इसकी फर्दर क्या करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड। जब इसमें वाटर ऐड करेंगे तो ये जो हाइड्रोजन है, प्रोटॉन जो है, ये इस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर जो है, ये देखें, ये जो हमारे पास ये जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और क्या बन जाएगा, हमारे पास टर्शरी अल्कोहल प्रोड्यूस हो जाएगा। और टर्शरी अल्कोहल का IUPAC नेम क्या है, 2 मिथाइल
2 ब्यूटानोल बन जाएगा और ये बाई प्रोडक्ट MgBrOH जो है MgBr और ये OH इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज बाई प्रोडक्ट। द मेन प्रोडक्ट हेयर विच इज प्रोड्यूस्ड हेयर 2 मिथाइल 2 ब्यूटानोल दैट इज टर्शरी अल्कोहल। माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। वी हैव कन्वर्टेड प्राइमरी अल्कोहल बाय द रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड, we have converted secondary alcohol by reaction with acetaldehyde and tertiary alcohol जो है हमने प्रोड्यूस किया by the reaction of Grignard reagent with acetone। and this is very important long question, how you will prepare primary, secondary and tertiary alcohol from Grignard reagent। My dear students, please note this important long question। Now my dear students, the last reaction of Grignard reagent is reaction with ethylene epoxide। This is Grignard reagent, this is ethylene epoxide CA2 इन दोनों के साथ ऑक्सीजन लगा देंगे तो what will happen? My dear students, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है CA3 अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऑन दिस कार्बन एटम तो what will happen? ये इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल इन रिटर्न ये जो कार्बन ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड इन दिस वे क्या होगा, ये देखें O लिख लें OCH2 CH2। अब इस CH2 के साथ CH3 लगा देंगे, इथाइल लगा देंगे। अब व्हाट विल हैपन, अब ऊपर इसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, इस ऑक्सीजन के साथ MgBr अटैच कर देंगे। अब ये जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना इसकी क्या करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड। तो ये जो हमारे पास ये जो प्रोटॉन है दैट इज इलेक्ट्रोफाइल है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अटैच हो जाएगा क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेगा एंड इन दिस वे व्हाट विल हैपन, हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका नाम होगा जी 1 ब्यूटानोल बन जाएगा और इसके साथ MgBr एंड OH जो है ये देखिए MgBr और ये OH जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा। दिस इज द बाई प्रोडक्ट एंड वी गेट द मेन प्रोडक्ट बाय द रिएक्शन ऑफ इथिलीन एपॉक्साइड विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट दैट इज 1 ब्यूटानोल प्रोड्यूस हो जाएगा। My dear student, there is a short question that how you will convert ethene into 1 butanol। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इथीन की ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड एज अ कैटालिस्ट एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इथाइलिन एपॉक्साइड। तो सबसे पहले क्या कर लिया आपने, इथाइलिन एपॉक्साइड प्रोड्यूस करवा लिया। अब इस इथाइलिन एपॉक्साइड की आप आगे जो है इसको ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ रिएक्ट करवा के ये दोनों रिएक्शन करवाएंगे और क्या बन जाएगा 1 ब्यूटानोल। तो ये 3 स्टेप रिएक्शन है 1, 2 and 3 and in this way this question will be solved, that is how you will convert ethene into 1 butanol। तो इथीन को पहले इथिलीन एपॉक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, इथिलीन एपॉक्साइड का रिएक्शन ऑलरेडी आपको आता है। Dear students and viewers, I hope that your concept have been cleared और आपके जो है वो ये आपको मेरे लेक्चर्स की अल्काइल हैलाइड चैप्टर की समझ आ गई होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे लेक्चर्स की समझ आ गई है देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।